हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक लेक्चर में भेज चुकी हूँ। दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन। इन दिस लेक्चर आई विल डू रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5, right? So this is your example number 8. It says if u is equal to log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, show that curl u by curl x plus curl u by curl y plus curl u by curl z, that is equal to 3 upon x plus y plus z, right? Solution. So you have u as log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. And you know one formula that this thing is same as x plus y plus z times x square plus y square plus z square minus 6y minus yz minus zx. ठीक है, इसके बराबर है. This is suppose a, this is suppose b. Log of a into b is log of a plus log of b. So it is log of x plus y plus z plus log of x square plus y square plus z square minus 6y minus yz minus zx, right? So differentiate it with respect to x partially. What do you get? You get curl u by curl x. This is equal to 1 over x plus y plus z, इसका डेरिवेटिव प्लस 1 over x square plus y square plus z square minus 6y minus yz minus zx into differentiation of this with respect to x, that is 2x minus y minus z. ठीक है, same way you can find curl u by curl y. If you differentiate this equation with respect to y partially, it is 1 over 1 x plus y plus z plus 1 over x square plus y square plus z square minus 6y minus yz minus zx into with respect to y कर रहे हैं तो 2y minus x minus z. ठीक है, curl u by curl z, it will be 1 over x plus y plus z plus 1 over x square plus y square plus z square minus 6y minus yz minus zx times 2z minus y minus x, right? So you add these three equations: curl u by curl x, curl u by curl y, curl u by curl z. 1 plus 1 plus 1. Denominator is same, so it is 3 upon x plus y plus z. ठीक है, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, you know denominator is same, so you will add the numerator 2x x x z z 2z 2y y y. So this all will get cancelled and you will be left with 0 only. ठीक है, so this is what you wanted to prove, right? Next question is example number 9. Example number 9, it says if z is equal to x times cos of y upon x plus tan of y upon x, then show that x square times curl 2z by curl x square 2xy times curl 2z by curl x curl y plus y square times curl 2z by curl y2, that is equal to 0. We have to show this thing. ठीक है, so you have solution. We have z equal to x times cos of y upon x plus tan of y upon x. ठीक है, so first of all you differentiate it with respect to x partially. What is curl z by curl x? Product rule लगेगा. First function as it is, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन y अपॉन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस cos y by x as it is इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 प्लस tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर और y अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस y अपॉन
एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा cos ऑफ y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स टाइम्स साइन ऑफ y बाई एक्स माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स सीकेंड स्क्वायर y अपॉन एक्स, ठीक है। सेम वे यू विल फाइंड कर्ल z बाई कर्ल y, ये आ जाएगा आपका माइनस साइन y अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स टाइम्स सीकेंड स्क्वायर y अपॉन एक्स, ठीक है। हाँ जी, now you will multiply this equation. This is suppose 1, this is suppose 2. You multiply 1 by x and 2 by y and add, ठीक है। ऐड करेंगे, सो x टाइम्स कर्ल z बाई कर्ल x, y टाइम्स कर्ल z बाई कर्ल y, दैट इज इक्वल टू x टाइम्स क्या हो जाएगा, x टाइम्स cos ऑफ y बाई x, x कैंसल, प्लस y टाइम्स साइन ऑफ y बाई x, एक x कैंसल, माइनस y अपॉन x टाइम्स सीकेंड स्क्वायर y बाई x माइनस y टाइम्स साइन ऑफ y बाई x प्लस y बाई एक्स टाइम्स सीकेंड स्क्वायर y बाई x, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, दिस विल बी गेट कैंसल विद दिस एंड दिस विल गेट कैंसल विद दिस, ठीक है। सो यू आर लेफ्ट विद x टाइम्स कर्ल z बाई कर्ल x, y टाइम्स कर्ल z बाई कर्ल y इक्वल टू व्हाट, दिस ओनली x टाइम्स cos ऑफ y बाई x, ठीक है। नाउ यू डिफरेंशिएट इट with respect to x, ठीक है। This is your equation number 3. Differentiate 3 with respect to x partially, ठीक है। इसको partially with respect to x हम differentiate करेंगे तो क्या आ जाएगा, x times curl to z by curl x 2 plus curl z by curl x times 1 plus y times curl to z by curl y curl x curl y, ठीक है। इक्वल टू x से करेंगे तो क्या आ जाएगा cos y बाई एक्स प्लस x एज इट इज माइनस साइन y बाई एक्स टाइम्स माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा x टाइम्स कर्ल टू z बाई कर्ल x 2 प्लस कर्ल z बाई कर्ल x प्लस y टाइम्स कर्ल टू z बाई कर्ल y कर्ल x, दैट इज इक्वल टू cos y बाई x, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस y अपॉन x टाइम्स साइन ऑफ y अपॉन x, इज इट क्लियर। नेक्स्ट वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 with respect to y partially, ठीक है। with respect to y अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x टाइम्स कर्ल टू z बाई कर्ल x कर्ल y प्लस y टाइम्स कर्ल टू z बाई कर्ल y स्क्वायर प्लस कर्ल बाई कर्ल z एज इट इज y का डिफरेंशिएशन 1, दैट इज इक्वल टू इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू y करना है अब इसको, तो x एज इट इज आ जाएगा माइनस साइन y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज 1 ओवर x, ठीक है जी। सो आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी x टाइम्स कर्ल टू z बाई कर्ल x कर्ल y प्लस y टाइम्स कर्ल टू z बाई कर्ल y स्क्वायर प्लस कर्ल z बाई कर्ल y दैट इज इक्वल टू x कैंसल माइनस साइन y ओवर x, ठीक है। नाउ एज पर क्वेश्चन ये आ गई इक्वेशन नंबर 4, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। मल्टीप्लाई 4 बाई एक्स एंड 5 बाई वाई एंड ऐड, ठीक है। जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग हमें ये आइडिया हो रहा है कि 4 को हमें x से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ताकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है। और इसको हमने y से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ताकि ये y स्क्वायर हो जाए, फिर हम ऐड करेंगे तो ऐसा करने में हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स कर्ल टू z बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स कर्ल z बाई कर्ल एक्स प्लस एक्स वाई टाइम्स इधर भी आएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा
curl 2z by curl x curl y plus y square times curl 2z by curl y square plus curl z by curl y times y, that is equal to x times, करेंगे तो क्या बन जाएगा, x cos y by x प्लस y sin y by x माइनस y sin y by x, ये कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी x square curl 2z by curl x square 2xy curl 2z by curl x curl y y square curl 2z by curl y square. ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, दिस प्लस दिस वो वाली x टाइम्स कर्ल, ये है हमारे पास प्लस x cos y by x दैट इज इक्वल टू x cos y by x, ये कैंसिल हो गया. सो दैट दिस विल बी इक्वल टू 0 जो हमें चाहिए. राइट, सो कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, जस्ट आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है. राइट, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हमें चलना है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 10. It says if z is a function of x and y given by x raised to x, y raised to y, z raised to z is equal to c, show that at x equal to y equal to z we have curl to z by curl x curl y that is equal to minus x times log of e x की power minus 1. Right, solution. हाँ जी, so you have x raised to x, y raised to y, z raised to z is equal to c. That means z raised to z is equal to c upon x raised to x times y raised to y. ठीक है, सो ऑफ कोर्स अगर हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए तो किसी तरह से ये पावर जो है ये नीचे आ जानी चाहिए, और इसको नीचे लाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज टेकिंग लॉग. राइट, सो टेक लॉग बोथ साइड्स, लॉग ऑफ z रेज टू z विल बी लॉग ऑफ c अपॉन x रेज टू x, y रेज टू y. ठीक है, पावर फॉर्मूला लगा के ये क्या आ जाएगा, z टाइम्स लॉग z, इट विल बी लॉग ऑफ, पहले क्वेश्चन फॉर्मूला लॉग ऑफ c माइनस लॉग ऑफ x raised to x, y raised to y, that will be log of c minus प्रोडक्ट फॉर्मूला और पावर फॉर्मूला यूज करके ये आ जाएगा x times log x minus y times log y. Right, now you differentiate 1 with respect to x partially, so it will be z times 1 over z plus log z times curl z by curl x, that is equal to 0 minus x 1 over x minus log x into 1 minus, ठीक है, ये बन जाएगा ये चीज, तो ये 0 ही है. राइट, so it is 1 plus log z times curl z by curl x, that is equal to minus of 1 plus log x. So it means यहाँ पे देखो 1 over z curl z by curl x भी आएगा. ठीक है, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. So here you are assuming z is a function of x and y and x and y are independent variables. Right, so it is, ये ब्रैकेट लग गया, so यहाँ से आ जाएगा कर्ल z by कर्ल x किसके बराबर, माइनस ऑफ 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z. Now we differentiate 1. Now we differentiate 1 with respect to y partially. It will be curl to z by curl y curl x, that is equal to minus 1 प्लस log x, ऊपर वाला जो है वो एज इट इज लिख लिया, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू अगर हम वाई पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इट इज अ कांस्टेंट. ठीक है, नाउ 1 over 1 प्लस log z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 1 प्लस log z नीचे हो गया स्क्वायर, तो ये आ गया
derivative of 1 plus log z, that is 1 over z into curl z by curl y, right? So it means curl to z by curl x curl y will be equal to minus of 1 plus log x upon z times log 1 plus log z का होल स्क्वायर इंटू कर्ल z by कर्ल y, राइट? नाउ जैसे हमने कर्ल z by कर्ल x निकाला है वैसे ही हम कर्ल z by कर्ल y निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा minus 1 plus log y upon 1 plus log z. Now we put this value here, it will be curl to z by curl x curl y equal to minus of 1 plus log x upon z times 1 plus log z का होल स्क्वायर, कर्ल z by कर्ल y का वैल्यू 1 plus log y upon 1 plus log z, ठीक है? Now at x is equal to y is equal to z, these two will be same, one will get cancelled and you will be left with 1 over x times 1 plus log x, right? क्योंकि z को भी x रख दिया, एक पावर कैंसिल हो गई बिकॉज इट इज log x 1 plus log x, एक पावर कैंसिल हो गई, नीचे बन गया 1 plus log x, so it is minus 1 over x 1 over e को हम लिख सकते हैं log of 1 को हम लिख सकते हैं log of e plus log of x, so it is minus 1 over x log of ex 1 over, right? So it is minus 1 upon x times log of ex. ओके, सो एक एग्जाम्पल रहेगी, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए आपको. दिस एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 11, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट? इसकी एग्जाम्पल कोई नहीं छोड़नी है आपने. और इसकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1, इसके हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करके अपनी फेयर नोटबुक पे उतार लीजिए. ओके, थैंक यू.